So from today onwards, in every class, we will choose the C's that we want to operate with in today's class. Okay, so today is a science class. I want you to select one C which you would want to operate with in this class. कौन सी C से तुम operate करना चाहते हो? It can be curiosity, like you want to ask more questions. It could be courage, you want to answer in the class. It could be collaboration, like we'll participate in the class, discuss. It could be communication, it could be critical thinking, it could be any C that you want to choose for yourself. So choose one C that you want to operate with and type on the chat box. If you want to share offline, please raise your hand as well. Yes, Rohan? Didi, creativity. Rohan wants to operate with creativity. Can I ask you, Rohan, why creativity? I want to answer the questions and participate in class. So you want to answer questions, you want to participate in class. So that would relate more to participation and to courage. But creativity का मतलब क्या होता है, Rohan? Didi, to make questions and items. Okay, you want to be creative in that way. Great, thank you, Rohan. I hope you can operate with that C in the class today. I'll take one more response. Fiza, which C you want to operate with in the class today? Composition. Compassion, Fiza. Compassion का मतलब क्या होता है बच्चे? To Compassion means self-care, self-love, caring for oneself and for others. Okay, so if you want to operate with compassion, it means you want to take care of yourself. Don't be very hard if you are not able to understand a few things. Keep trying and focus on your well-being. Okay, great. Thank you, Fiza. We will also discuss these C's regularly in our classes. So please ensure that you know the meaning of each C and what value it has in life. Okay. So if you want to ask about any of the C further, you can connect with me uh, personally. Okay. Moving forward with our class, this is the class attendance sheet. I will enable annotations for you all. Quickly annotate. In front of your name छोटा सा dot लगाएंगे. If you are present in the class, छोटा सा dot you will put, right? Don't draw lines or any other thing. छोटा सा dot put in front of your name if you are there in the class. Also make a note of who are not there in the class. See if he or she is your friend and you can reach out and ask why they are not attending classes. ठीक है? हर्षद छोटा सा dot. Dhanshri small dot I said. Can Mau, are we there in the class? If we are there in the class, I have asked you to put a small dot in front of your name. Mohammed, you are there in the class, right? Okay, great. Stop annotating now. I have seen, देख लिया मैंने कितने लोग instructions follow कर रहे हैं और कितने नहीं. Stop annotating now. Okay, ठीक है. I know a few of you are not in the class. Please check with Ankita. One of you, please call her and check with her what happened. She hasn't joined yesterday's class as well. I'll check with Minakshi. Please check with Satpreet also. She is also not joining classes these days. If any of you can check. Okay? Okay, great. Please stop annotating on the screen. No more annotations on the screen. Now, great. Okay. Thank you guys. Moving forward.
I'm sorry. How many of you completed the homework that was sent yesterday? How many of you completed the homework that was sent yesterday? If you did complete the homework, please mark in front of your name. If you completed the homework, please mark a dot in front of your name. Okay, Riya, Manjushri, Prachi, Atharva, you did complete your work? Harshad, can you tell us what was the homework? Riya, I'll get you to speak 1 minute. Yes, Harshad, what was the homework? PDF, कौन सा PDF? Max, नहीं बेटा, मैंने कल मैथ्स का होमवर्क ही नहीं दिया था. Faizan, can you tell me what was the homework yesterday? Faizan. Please unmute yourself and tell me what was the homework yesterday. And if you don't know what was the homework, please give me a reason as to why you didn't attend the class yesterday when Mohammed called you. Faizan, I'm asking a question to you. If you are not unmuting, for me, you are absent in the class then. And somebody is unmuted. Please mute yourself, Harshad. Please mute. Okay, Krishna. Riya, you tell me, what was the homework? Didi, the homework was on the WhatsApp group. Yes, it was sent in the WhatsApp group. पर क्या था homework? What was the We work? have to watch the Hmm. video Yes, you had to watch a few to videos. complete Okay. watching the videos and do the goal. We have to set a goal. Right. Okay. Thank you so much, Riya. So you had to complete your goal setting graphic organizer. You had to watch a few videos of science, and in English you had to actually record a poem and send across. ठीक है? मेरे पास बहुत ही कम लोगों का गोल सेटिंग वाला इमेज आया था, बाकी सबका नहीं आया. साइंस के वीडियोस कितने लोगों ने देखे हैं? प्लीज रेज योर हैंड इफ यू वॉच द वीडियोस जो मैंने भेजे थे. इफ यू वॉच द वीडियोस, गिव मी अ थम्स अप और रेज योर हैंड. 6, 5 of you, 7, 8. Okay. So सिर्फ 7 of you actually did my homework, right? बाकी सब ने क्यों नहीं किया? तो मैं सिर्फ उन 7 को क्लास में पढ़ा रही हूँ, बाकी सब can leave the class. Okay? Those who have done the work, मैं सिर्फ उनको पढ़ाऊँ. Harmeet Didi is in Pune and I am going to send her to each one of your houses. सबके घर भेजूंगी मैं एक एक करके हरमीत दीदी को अब. ठीक है? She'll come to each of your house and talk to your parents now. ठीक है? Those who have watched the video can actually answer the question and understand what we are studying in the class. Rest of you, I leave it on you, how and what you want to do of it. So there are 4 questions that we will be exploring in our class today. Some of it हम सबको पहले से पता है थोड़ा बहुत. ऐसा नहीं है कि हम में से किसी को नहीं पता. We might have known about it already. Some of you have done actually written the answers in the notebook and submitted, like Harshada did. Very good, Harshada. I think Prachi also did. So those who did it, very good. Those who have watched the video will be able to answer my questions properly. Those who haven't watched the video, I can only ask you to watch it today. We'll explore these 4 questions and we'll explore the concepts behind it. Okay.
The first question that was there to explore in the videos was how was Earth formed? Okay, so Earth is our planet. We all know it is the third planet in our solar system. We know that universe was formed via a big bang that happened many years back. और फिर उधर ही से planets बने थे. Who in the class can tell me the answer to this question, that how was Earth, our planet, formed? Yes, Harshada. Didi, Earth was formed when the solar system settled into its current layout about 4.5 billion years ago. Earth was formed when gravity pulled swirling gas and dust in to become the third planet from the sun. Right. Okay. Thank you, Harshada. So solar system जब form हुआ था 4.5 plus billions of years ago, जब solar system Big Bang से form हुआ था, तो बहुत सारी galaxies और बहुत सारे star systems form हुए थे within a course of time. तो अर्थ भी हमारे सोलर सिस्टम के जैसे बाकी प्लैनेट्स फॉर्म हुए धीरे धीरे कूल होने के बाद ग्रेविटी की वजह से अपने आसपास वाले ऑब्जेक्ट्स को उन्होंने पुल किया, अपने आसपास का एटमॉस्फेयर जो है वो क्लियर किया, एंड देन दे बिकेम प्लैनेट्स. तो अर्थ वाज आल्सो फॉर्म लाइक दैट. ठीक है, we'll be watching a video and we'll be exploring the answer to this question in detail. ठीक है, all the 4 questions in detail. ठीक है, so earth was formed like this. It is the third planet in our solar system also, right? Moving to the next question. ये वाला answer, I think most of the class should know the answer to this question. What is rotation and what is revolution? ठीक है, what is rotation and what is revolution? Satpreet, it is science. You can call it, actually this subject is earth science. Geography or science may you can consider, but write in your science notebooks. Okay, who in the class will explain me what is rotation of earth and what is revolution of earth? Only 3 students in the class know rotation or revolution क्या होता है, बाकी किसी को नहीं पता. Sarah, can you tell us what is rotation of earth? Sarah. Yes, Didi. What is rotation of earth, Sarah? What is rotation? Yes, Didi, rotation of earth. Rotation means that earth or earth is rounded. Sumit? Where is Sumit? Can somebody message Sumit and ask that he has dropped off the class? Karthik, meanwhile you explain what is rotation of earth. Rotation means rotating in itself. Rotating in itself matlab? The earth rotation of earth is rotating itself. खुद गोल घूमना. Right. Earth rotates on its own axis, है ना? Earth अपने आप ही गोल गोल घूमता है अपने ही axis में, and that phenomena is known as rotation of earth. Thank you, Karthik. Who will tell me what is revolution of earth? Revolution of earth. Mau? Mau? Yes, Didi. What is revolution of earth? Revolution means that Earth rotate around Sun. That is revolution, and rotation is Earth rotate in Earth place. Okay. So earth rotation and revolution are 2 very basic concepts. जिन्हें भी confusion या doubt है बहुत ध्यान से सुनना. Earth
सन के अराउंड सारे प्लैनेट्स घूमते हैं अराउंड देयर ओन ऑर्बिट्स, तो सन के अराउंड जो ऑर्बिट में घूमते हैं प्लैनेट्स उसको रेवोल्यूशन बोलते हैं, और अर्थ अपने ही एक्सिस में अपनी ही जगह राउंड घूमती रहती है ऑल द टाइम, ठीक है, दैट इज नोन एज रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ के रोटेशन और रेवोल्यूशन से बहुत सारे अलग अलग फिनोमिना जो अर्थ में होते हैं, दे आर अ रिजल्ट ऑफ रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, लाइक डे एंड नाइट, like different seasons of earth, ठीक है। So we will be watching different videos to understand these phenomena, and we'll be making notes where whatever detail we don't know we'll write it down in our notebooks, ठीक है। We will also explore कि अगर अर्थ स्पिन करना छोड़ दे या फिर अगर अर्थ स्पिन कर रही है ऑल द टाइम तो हमें क्यों नहीं फील होता। we'll explore certain questions which are related to earth in that way, ठीक है। Now before I move forward and show you these videos and we explore this together, I would want to ask you all if you have any questions जो आपके मन में ऐसे आते हो अर्थ के रोटेशन, रेवोल्यूशन या अर्थ स्पेस में है उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में है, then please raise your hand and ask the question. Please use the curiosity to think कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो हमारे दिमाग में आते हैं जो हम अर्थ के बारे में एक्सप्लोर करना चाहते हैं। यस सलेहा। दीदी अर्थ कितने बार घूमता है? अर्थ कितने बार घूमता है? ओके, आई विल एक्सप्लेन दैट, ठीक है। थैंक यू सलेहा फॉर द क्वेश्चन। हर्षद। why earth rotated? अर्थ रोटेट क्यों करता है इज अ वेरी गुड क्वेश्चन हर्षद, ठीक है, वील एक्सप्लोर दैट इटसेल्फ। एंड मंजुश्री, थैंक यू फॉर आस्किंग। मंजुश्री। यस दीदी, मतलब जो अर्थ का मतलब नहीं क्या हमने भी उस वीडियो में देखा था कि सब अर्थ है और उसके बीच में मतलब उनके साइड में नहीं क्या लाइंस है उस मतलब उसमें अर्थ से, तो वो लाइन सच में होती है कि सिर्फ ऐसे घूमता है हमारा? अच्छा, ऑर्बिट और एक्सिस जो है, ऑर्बिट और एक्सिस इमेजिनरी है, ऐसे सच में लाइंस नहीं है सोलर सिस्टम में जिसके अराउंड घूमते हैं, बट जिस पाथ से वो घूमते हैं, जिस पाथ पे हमारा अर्थ प्लैनेट घूमता है उसको हम अर्थ का ऑर्बिट कहते हैं। सभी प्लैनेट्स के अपने ऑर्बिट होते हैं, उसी पाथ में वो घूमता है ना। एक्सिस भी इमेजिनरी लाइन है जिसके अराउंड ऐसे कहते हैं कि अर्थ गोल गोल घूमता है। ओके, ग्रेट, थैंक यू फॉर दीज 3 क्वेश्चंस। आई सी फिजा आल्सो हैविंग अ क्वेश्चन। यस फिजा। दीदी why season occur? ओके ग्रेट, सो व्हाई डू सीजन्स ऑकर? अलग अलग सीजन क्यों होते हैं? ठंड, बारिश, गर्मी, ये अलग अलग सीजन क्यों होते हैं? ये भी एक क्वेश्चन है which we will explore. Now any of you in the class would like to answer any of the question which your friends have just raised? किसी को इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है और वो आंसर करना चाहता है क्या? अभी जो सलेहा, हर्षद, मंजुश्री और फिजा ने पूछे, any of you in the class would want to answer the questions? No? Nobody in the class knows कि seasons क्यों occur होते हैं? Okay. Okay, I can see a few hand raised. Who is with the name Afsara 9C? Can you please rename yourself? Yes, Dhanshri. Didi, we occur different seasons because when we have lots of rain, the water comes in now. So in summer, the summer take lots of water, and when we in the summer we get lots of hot. That's why the winter come and make cool all of us. Okay, great. Great explanation of seasons, Dhanshri. But the question here was कि क्यों अलग-अलग seasons होते हैं? Don't worry, we'll explore this question as well. ठीक है? तो अभी बहुत carefully we'll listen to Didi. We'll also watch the videos very carefully, and we will make a note of what is going. We'll explore these questions, all these questions. Okay? After this class, when all the videos are played, when I have explained, all of you in the class must be able to answer these 4 questions. ठीक है? इसलिए बहुत ध्यान से फोकस के साथ हम सुनेंगे. Okay, if you want to take a water break, if you want to use the washroom or just reframe yourself, quickly take that break, drink some water, and then we'll start exploring by watching few videos.
ठीक है. Meanwhile, please can somebody call Sumit and check why he has left the class. We'll take 1 minute. 1:18 पे we'll start exploring the answers to our questions. Okay, guys, we'll all start coming back. Please check with your friends if they have left the class or are yet not in the class. ठीक है. So the first concept मैं पहले quickly explain करूंगी, फिर वीडियो भी देखेंगे हम तो समझेंगे. First we need to understand the difference between rotation and revolution. रोटेट करना और रिवॉल्व करने में क्या फर्क होता है. ठीक है. Here is a small image that you can see on my screen. ठीक है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे. एक इमेज ड्रॉ किया हुआ है. ओके. नाउ फर्स्ट वील अंडरस्टैंड व्हाट इज रोटेट. रोटेट करने का मतलब होता है स्पिन करना या टर्न करना. ठीक है. तो अर्थ जो है वो अपने ही एक्सिस पे जहां पे वो है वहीं हमेशा ऑल द टाइम इट कीप्स ऑन रोटेटिंग. गोल 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 अपनी ही जगह पे घूमती रहती है अर्थ. राइट. नाउ इस पूरे एक सर्कल को गोल घूमते हुए अपनी पोजीशन पे वापस आने के लिए अर्थ को 24 आवर्स लगते हैं. ठीक है. 24 घंटे लगते हैं अर्थ को अपने ही एक्सिस में गोल एक राउंड कंप्लीट करने के लिए. ठीक है. तो एक दिन अगर आपका बीतता है तो मतलब अर्थ ने एक राउंड कंप्लीट कर लिया है. ठीक है. इस राउंड जो ये जो राउंड घूमता है अर्थ, इसकी वजह से हमारे दिन और रात होते हैं. राइट. कैसे, हम बहुत अच्छा एक वीडियो है उसको देख के समझेंगे. ठीक है. सो अर्थ के रोटेशन से, रोटेट करना मतलब अपनी ही जगह पे गोल गोल घूमना, उसकी वजह से अर्थ दिन और रात होते हैं अर्थ में, और एक रोटेशन के लिए अर्थ को 24 आवर्स लगते हैं. इसीलिए एक दिन 24 आवर्स का होता है. ओके. नेक्स्ट इज रिवॉल्व. रिवॉल्व करना मतलब किसी चीज के अराउंड घूमना. ठीक है. तो हमें पता है कि हमारे सारे प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. अर्थ भी सन के अराउंड रिवॉल्व करती है. ना एक पूरा चक्कर के सन के अराउंड काटने के लिए अर्थ को 365 डेज लगते हैं. 365 डेज या फिर 1 ईयर. ठीक है. हमारा एक साल 365 दिन का होता है. राइट. क्यों होता है? क्योंकि अर्थ को 365 डेज लगते हैं सन का पूरा चक्कर काट के अपनी जगह वापस आने के लिए. ठीक है. ये जो रिवॉल्यूशन होता है अर्थ का सन के अराउंड, इस रिवॉल्यूशन की वजह से हमारे अलग अलग सीजन्स होते हैं. ठीक है. कैसे ये सीजन्स होते हैं इसका भी एक बहुत अच्छा वीडियो है जो अभी हम देखेंगे. जो वीडियोस मैं क्लास में दिखाने वाली हूँ, दे आर डिफरेंट फ्रॉम द वीडियोस दैट आई हैड शेयर्ड ऑन द ग्रुप. इन वीडियोस को हम बहुत केयरफुली देखेंगे सो दैट वी अंडरस्टैंड विजुअली, वी कैन सी के क्या हो रहा है. ओके. तो फर्स्ट वी विल एक्सप्लोर हिस्ट्री ऑफ द अर्थ टू अंडरस्टैंड कि हाउ वाज अर्थ फॉर्म्ड. इससे हमारे यूनिवर्स का रिवीजन भी होगा. एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव एनी डाउट और यू डोंट अंडरस्टैंड क्या हो रहा है, प्लीज रेज योर हैंड एज वेल. ठीक है. I can see 3 of the students have left the class right now. Please remember that Didi will come to know if you have not attended or left the class in between. ठीक है. If your friend has left, please ask them to join again. Okay, so we'll quickly play this video to understand the history of Earth, कि Earth कैसे बनी थी. Okay, बहुत ध्यान से देखेंगे हम. If you're the type of person who sometimes wakes up at 3 a.m. and lies in bed trying to wrap your tiny mind around the achingly vast universe and where it's all headed, well, we have something for you. Ever since the Big Bang, the universe has been drifting and expanding. The birth and death of stars leave an aftermath of galaxies, planets, and even living organisms. This includes the sun,
planets, and our solar system. At the center, the sun swept in smaller elements like hydrogen and helium. Farther away, heavier elements formed planets. Based on the core accretion model, gravity was the driver, coalescing Earth from a cloud of dust. Though Earth was neatly orbiting the Sun as a rocky mass 4.5 billion years ago, no organism could survive there. Radiation from the recent supernova kept the planet extremely hot, its surface molten, and oxygen was non-existent. Plus, incredibly massive meteorites and asteroids frequently slammed onto the surface. The Earth got so hot it began melting. Heavier material sank to the bottom. Lighter stuff rose to the top. Some elements evaporated. This transformation created the Earth's layered core and mantle, crust, atmosphere, and magnetic field. Without it, Earth would be blasted by harmful rays from the sun. Okay, अभी तक के वीडियो में I'll also explain what was said. जब बिग बैंग हुआ था तो पूरा हमारा यूनिवर्स बना था, राइट? और हमें पता है कि जब ये बहुत बड़ा सा धमाका हुआ था और सारे गैलेक्सीज उससे बने थे, उस टाइम पे जो टेम्परेचर था वो बहुत ज्यादा गर्मी थी. वी कांट इवन थिंक ऑफ कि कितनी गर्मी होगी, राइट? फिर स्लोली यूनिवर्स ने कूल होना शुरू किया. जैसे जैसे वो दूर होता गया, एक्सपैंड होता गया, इट स्टार्टेड कूलिंग. ठीक है, जब हमारा सोलर सिस्टम बना था उस टाइम पे सन बहुत गर्म था, अभी भी है, तब भी बहुत गर्म था. और ये जो हमारे सारे प्लैनेट्स हैं वो मियर ऐसे पत्थर के बड़े बड़े टुकड़ों की तरह थे. और वहाँ टेम्परेचर इतना ज्यादा गर्म था कि कोई फॉर्म ऑफ लाइफ वहाँ एग्जिस्ट नहीं कर सकती थी. जब धीरे धीरे टेम्परेचर कम होने लगा, कूल होने लगा सब कुछ, तो जितने भी हैवी मेटल्स थे जो हमारे अर्थ में थे, जो एग्जिस्ट करते थे, वो नीचे की तरफ सिंक होने लगे. और बहुत सारी गैसेस, जो हार्मफुल गैसेस हैं, वो इवेपोरेट होने लगे. ठीक है, तो इससे क्या हुआ, अलग अलग लेयर्स बने अर्थ में. एक कोर बना जहाँ पे हैवी मेटल्स है, फिर उसके ऊपर मेंटल बना, फिर हमारा क्रस्ट जो टॉप सॉइल है जहाँ हम रहते हैं, लैंड, वो बना, और उसके ऊपर एटमॉस्फेयर बना अर्थ का. ठीक है, ये सब होने में भी बहुत सारा टाइम लगा था. और इतने सारे टाइम के लिए देयर वाज नो लाइफ दैट एग्जिस्टेड ऑन अर्थ, और रह भी नहीं सकती थी, राइट? क्योंकि बहुत ज्यादा टेम्परेचर था. ओके, नाउ वी विल सी फर्दर. Before you learn everything about the Earth's history, hit the subscribe button and ring the notification bell. This way you'll be the first to learn about updates that appear on Googleplex. In the late Hadean Eon, the Earth was still in its late bombardment stage. There is no life. Temperatures are extremely hot, with frequent volcanic activity and hellish environments. The atmosphere is nebular, possibly early oceans or bodies of liquid water. The moon is formed around this time, probably due to a protoplanet's collision into Earth. In addition, there's reason to believe that these collisions could have sparked the chemical building blocks for life, DNA. Eventually, the climate on Earth became more stable. Instead of a molten state, the Earth started to cool down. Water vapor condensed to form oceans, and the Earth cooled down enough to create continents. Vale-Barra became Earth's first supercontinent. Photosynthetic organisms appeared between 3.2 and 2.4 billion years ago and began enriching the atmosphere with oxygen. Single-celled organisms consumed the sun's energy. As a waste product, this cyanobacteria eventually filled the oceans and atmosphere with oxygen. Earth now had an oxygenated atmosphere for new life to flourish, but it wasn't cyanobacteria. Oxygen was toxic for them. Much life on Earth probably died out as its levels rose in what is known as the oxygen catastrophe. Imagine a dominant species polluting the planet until extinction. Resistant forms survived and thrived, and some developed the ability to use oxygen to increase their metabolism and obtain more energy from the same food. At this time, methane was more abundant in the atmosphere. One thing that methane did very well was trap heat in the atmosphere.
It's one of the most efficient greenhouse gases. So, when oxygen combined with methane, it produced carbon dioxide. All of a sudden, the greenhouse effect wasn't as strong. As a result, the whole planet froze. It was snowball Earth for the next 300 million years. As oxygen filled the atmosphere, Earth's ozone layer thickened. ओके अभी तक क्या हुआ आगे? बहुत गर्म था, फिर धीरे धीरे कूल होना शुरू हुआ, फिर भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, ठीक है। फिर ग्रेजुअली ड्यू टू सर्टेन फिनोमिना बहुत वोल्केनिक इरप्शंस होते थे, अलग अलग टाइप के मेटल्स, देयर वर डिफरेंट गैसेस जो प्रोड्यूस होती थी, ठीक है। उन्हीं से एक तरीके का बैक्टीरिया अर्थ में पैदा हुआ जो ये सारी गैसेस इनटेक करता था पर ऑक्सीजन देता था, ठीक है। तो उसकी उन बैक्टीरियाज की वजह से हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन आया, लेकिन ये जो ऑक्सीजन था ये उनके लिए हार्मफुल था, उन बैक्टीरियाज के लिए हार्मफुल था, तो वो ये ऑक्सीजन नहीं कंज्यूम कर पाते थे, तो ग्रेजुअली वो एक्सटिंक्ट हो गए और दूसरे स्पीशीज जो ऑक्सीजन को यूज कर सकते थे अपनी एनर्जी स्टोर करने के लिए या फूड कंजम्पशन के लिए, वो पैदा होना शुरू हुए, राइट। नाउ अर्थ के एटमॉस्फेयर में अभी भी ऑक्सीजन तो था पर मीथेन ज्यादा था। मीथेन इज अ डिफरेंट गैस, ओके, इट इज अ हार्मफुल गैस, बहुत ज्यादा था। तो मीथेन और ऑक्सीजन रिएक्ट करने लगे और जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड अर्थ में पैदा हुई, राइट। नाउ इस कार्बन डाइऑक्साइड से ग्रीन हाउस इफेक्ट हुआ, अलग अलग टेम्परेचर चेंजेस हुए और फिर 300 बिलियन सालों के लिए ऑलमोस्ट अर्थ में पूरा बर्फ जम गया, ठीक है। देयर वाज नो लाइफ ऑन अर्थ दैट टाइम आल्सो, और एकदम गरम गोले से नाउ द अर्थ कन्वर्टेड इटसेल्फ इनटू फुल आइस बॉल, इतना ठंडा हो गया वहां पे, ठीक है। फिर we'll see further, okay? Before the presence of an ozone layer, life was restricted to shallow water. Because water shielded harmful radiation, that's where life existed. Eventually, a thicker ozone layer enabled life to diversify on land. 541 million years ago, hard-shelled invertebrates originated in the oceans, and life got more diverse from there. Next came the age of fish, when thousands of fish species arose. Plants and fungi were the first to venture out of the water, requiring them to adapt to new conditions on dry terrain. Some fish stayed in close proximity to land and gradually adapted to life there, simultaneously developing lungs. Amphibians were the first vertebrates to make the move to land. The transition to life on land benefited these creatures because there was no predators to begin with, and food was plentiful. That was the start of the age of amphibians. Then, 250 million years ago, was the Permian extinction, which caused extinction of 95% of all living species. When Earth's climate became hotter and drier, rainforests collapsed, triggering the age of reptiles, unanimously depicted by Tyrannosaurus rex, locked in eternal conflict with mortal enemy Triceratops. Because reptiles evolved to dry land conditions, they gained a unique ecological advantage. Also notable is that Pangaea existed as one supercontinent in this era. Dinosaurs lived on one supercontinent. Plate tectonics were the mechanism that eventually tore continents apart. Don't forget that dinosaurs existed for 160 million years, so continental drift gradually rifted dinosaurs apart. From between the feet of stomping dinosaurs, ratty animals scurry about, cue an asteroid impact, and the age of mammals begins. Mammals evolved from mammal-like reptiles called therapsids about 200 million years ago, and birds from small theropod dinosaurs about 150 million years ago. This evolution of both mammals and birds accelerated after the extinction of the dinosaurs 65 million years ago, when a 6-mile-wide asteroid struck Earth just off the Yucatan Peninsula. This ejected vast quantities of particulate matter and vapor into the air that occluded sunlight, inhibiting photosynthesis. 75% of all life, including the non-avian dinosaurs, became extinct. Poor dinosaurs, imagine that if the meteor never hit Earth, we would be intelligent dinosaurs. The first true mammals Okay,
सो अभी तक वीडियो में क्या हुआ, जब आइस बॉल का गोला बन गया था राइट अर्थ, उसके बाद उस टाइम पे डीप वाटर में, ओशन के सबसे नीचे कहीं पे देयर वाज लाइफ जो पैदा हुई। धीरे धीरे फिशेस, डीएनए मॉडिफाई हुए, फिशेस आई अपने लाइफ में, फिर फिशेस धीरे धीरे बढ़ते गए, वाटर में ही ऊपर लाइफ आती गई, फंगस जो होती है वो पैदा हुई, एंड फिर ग्रेजुअली प्लांट्स जो अर्थ पे है वो पैदा होने लगे। ठीक है, ऑल दिस हैपेंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। फिर जब प्लांट्स आए, फिर ग्रेजुअली अलग अलग टाइप की लाइफ फॉर्म आना हुई, शुरू हुई अर्थ में। ठीक है, फिर डायनासोर्स अर्थ में हुए, एंड जब डायनासोर्स थे उस टाइम पे देयर वर नो 7 कॉन्टिनेंट्स, ऐसे 7 कॉन्टिनेंट्स नहीं थे, एक बहुत बड़ा सा कॉन्टिनेंट था लैंड का जहाँ सारे डायनासोर्स रहते थे। ठीक है, फिर अर्थ में ऑल टाइम कुछ ना कुछ चलता रहता है, कुछ एक्टिविटीज की वजह से ये सारे कॉन्टिनेंट्स की जो प्लेट्स हैं वो अलग अलग हुई और दूर दूर चली गई, तो ये डायनासोर्स भी अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में पहुंच गए। राइट, फिर ऐसे माना जाता है कि एक बहुत बड़ा सा एस्ट्रॉइड आके अर्थ से टकराया, उस एस्ट्रॉइड के टकराने की वजह से सारे के सारे डायनासोर्स जो थे अर्थ में वो सारे एक्सटिंक्ट हो गए, या फिर दे ऑल डाइड। ठीक है, सो दिस इज व्हाट हैज हैपेंड इन द वीडियो अभी तक। अब डायनासोर्स के मरने के बाद क्या हुआ इज व्हाट वी आर सीइंग। ठीक है, Evolved in the shadows of dinosaurs and other large archosaurs. When dinosaurs roamed the earth, mammals were very small and were probably nocturnal to escape predation. And because dinosaurs went extinct, mammals emerged as the largest land animals at the time. Creatures like Ambulocetus took to the oceans to eventually evolve into whales, whereas some creatures like primates took to the trees. Then, just several million years ago, we believe that human life began to evolve. Apes remained in trees for their primary food source. Eventually, grass began to spread in places like the African savanna, and there were fewer trees. This forced apes to walk to new food sources. With their heads above the grass to see predators, apes evolved by walking on 2 legs. It also helped to have their hands available when they were traveling. Brain size increased rapidly, and by 2 million years ago, the first animals classified in the genus Homo had appeared. They were known for sharpening objects with silicon rocks. They began to master the use of their hands and fingers. In the Stone Age, early humans had fire under control. This enabled them to cook their food, giving them more calories. Modern humans, Homo sapiens, learned to make more complex sounds and share information in groups. They are believed to have originated around 200,000 years ago or earlier in Africa. The oldest fossils date back to around 160,000 years ago. ओके ठीक है, अभी डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए, तो जब डायनासोर्स थे, डायनासोर बहुत बहुत बड़े थे। ठीक है, आज हम एलिफेंट्स देखते हैं जो बड़े होते हैं, पर डायनासोर्स उनसे भी कई गुना ज्यादा बड़े हुआ करते थे। ओके, सो आफ्टर द डायनासोर एक्सटिंक्ट, उनके बाद जो छोटे क्रीचर्स थे उन्होंने एग्जिस्ट करना शुरू किया, एंड द मैमल्स जो थे, मैमोथ्स जो थे, वो कहलाने लगे सबसे बड़े एनिमल्स। ठीक है, ना अलग अलग लाइफ फॉर्म अलग अलग जगहों पे बढ़ना शुरू हुई, एंड देन केम एप्स। एप्स जो होते हैं ना वो आए। अब ट्रीज कम थे और ग्रासेस ज्यादा होने लगी, और एप्स को अपने खाने के लिए ऐसे देख के जाना पड़ता था। राइट, ट्रीज से कूद नहीं पाते थे, उनको देखना पड़ता था कोई उनका शिकार ना कर ले, तो वो 2 पैरों पे खड़े होके चलने लगे। और धीरे धीरे एप्स से ही ह्यूमंस जो आज एग्जिस्ट करते हैं, धीरे धीरे चेंज हुई स्ट्रक्चर्स ऑफ बॉडी एंड डीएनए, और एप से ही ह्यूमंस बने। ह्यूमंस जब शुरू में थे तो वो स्टोन एज, हमने पढ़ा था पिछले साल, तब वो हंटिंग करते थे और पत्थरों से अपने टूल्स बनाते थे, और धीरे धीरे ग्रेजुअली वो इवॉल्व होने लगे, और आज के जो ह्यूमंस हैं वो एग्जिस्ट करने लगे। ठीक है, अभी अगर आप सोचोगे तो आज से इट इज जस्ट लाइक 2 मिलियन ईयर्स, 200 मिलियन ईयर्स अगो ही ह्यूमंस अर्थ पे आए थे। राइट, उसके पहले और बहुत सारे क्रीचर्स अर्थ पे रहते थे। और अगर अभी की हिस्ट्री पढ़ोगे ह्यूमंस की, तो ही देखोगे कि आज से 20 साल पहले देयर वाज नथिंग लाइक मोबाइल फोन्स और टेक्नोलॉजीज अराउंड, बट ह्यूमंस इवॉल्व करते गए, अपना ब्रेन का यूज करते गए, एंड नाउ वी आर सो एडवांस इन टेक्नोलॉजी। और फ्यूचर में भी ह्यूमंस ऐसे ही इवॉल्व होते जाएंगे, एंड क्या पता किस टाइप के क्रीचर्स में वो डेवलप हो। ठीक है, सो दिस इज येट टू एक्सप्लोर।
Okay, so this was a brief history of Earth. I know there was too much to process. बहुत सारा था उस वीडियो में. Not everything needs to be remembered. It is just कि हमें पता हो कि क्या क्या हुआ था Earth की timeline में. Okay. Now anybody in the class can give me a quick summary of what you understood from the video. I know Harshada had difficulty in understanding क्या हो रहा था. बाकी anybody in the class who can quickly tell us कि क्या समझ आया वीडियो में. कैसी विनायक, कृष्णा, प्राची, मऊ, प्रेम raising their hands. What about others? Satpreet, would you like to tell us क्या समझ आया तुम्हें वीडियो में? Satpreet. Satpreet, are we there in the class? Did we see the video? Yes, Didi. क्या समझ आया वीडियो में? I understood that how the earth formed and why, how the animals and nature born and why dinosaur extinct, how the humans born. Okay, great, amazing. So Satpreet could learn so many things from the video. I will share the link of the video separately if you would want to see it again and understand. I would take one more response. Prem, can you explain क्या समझ आया वीडियो से? दीदी कैसे सन बना, प्लैनेट्स बने, फिर कैसे धीरे धीरे वाटर, फिर लाइफ चालू हो गई, कैसे अलग अलग गैसेस बनने लग गए, Right. और अलग अलग एनिमल्स बनने लगे, डायनासोर कैसे एक्सटेंड हुए, Right. और आपके जो ऐप्स है ना उससे कैसे ह्यूमन बने. Okay, amazing, great. Okay, so I hope you got to learn something new and interesting after watching this video. Can somebody quickly answer me कि how did dinosaur extinct? सारे dinosaurs कैसे extinct हो गए Earth से? What happened that the dinosaur got extinct from Earth? I can see Prem, Karthik, Harshad, Prachi, Manjushri. Manjushri, quickly tell us कैसे dinosaur extinct हुए? यस दीदी. दीदी जो मतलब एक बड़ा पत्थर था, वो हमारे अर्थ से मतलब टकरा गया, तो वो मतलब उसका बहुत हीट था, तो फिर उसके वजह से डायनासोर्स. ओके, ग्रेट, अमेजिंग, राइट. तो एक बहुत बड़ा सा एस्ट्रॉइड था जो अर्थ से टकराया, राइट, और उससे बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ और जितने भी डायनासोर्स थे वो सब एक्सटिंक्ट हो गए. ओके, सो ऐसे बहुत सारी स्टोरीज चलती हैं. ऐसे लोग कहते हैं कि एक और एस्ट्रॉइड ऐसे टकराएगा हमारी अर्थ से और जो ह्यूमैनिटी है, जो ह्यूमन फॉर्म है, वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा, राइट. ऐसी बहुत सारी थ्योरीज हैं जो चलती रहती है. ओके, बट ऐसा इसीलिए भी चलता है बिकॉज एक बार ऐसे अर्थ पे हो चुका है. ओके. Okay, I know this is very intriguing, but we'll take a quick snappy break. Thoda sa we'll move our necks. We'll also snap if you want, or clap if you want. Drink some water, and then we have to explore 3 more questions. Okay, so there are 3 short videos that we'll watch in the class today, and I hope that you are finding this interesting and want to learn more about it. I just really hope so. Yes, Mau? दीदी अभी भी क्या डायनासोर है? No, we do not have any dinosaurs left. But हमें कहीं कहीं डायनासोर के फॉसिल्स मिलते रहते हैं, कहीं एग्स मिलते हैं डायनासोर के, जो कि you can find in some of the museums as well. There are fossil parks जहाँ पे डायनासोर्स के फॉसिल्स पाए जाते हैं, but no real dinosaurs does not exist right now. दीदी अगर डायनासोर नहीं मिला तो वो एग्स कैसे मिलते हैं? डायनासोर के एग्स होते हैं, उनके फॉसिल्स होते हैं बेटा, वो लाइव एग्स नहीं होते हैं. दोज आर फॉसिल्स जो बहुत कहीं पे बरी हो गए थे, कुछ पत्थरों के बीच में या अर्थ में नीचे कहीं, एंड देन बाद में हमें मिलते हैं, राइट. सो वी आर गेटिंग देम इतने सालों बाद भी मिल रहे हैं. ओके, सो दैट इज अ प्रूफ कि डायनासोर एग्जिस्ट करते थे उस टाइम पे. okay? बहुत सालों पुराने फॉसिल्स भी हमें मिलते हैं, आज भी मिलते हैं. जैसे लास्ट ईयर हमने हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन का पढ़ा था.
खुदाई में कहीं से पूरी की पूरी सिटी नीचे से निकली थी, राइट? तो हमें एक सिविलाइजेशन के बारे में पता चला था। वो सिविलाइजेशन भी बहुत सालों पहले एग्जिस्ट करती थी, पर ऐसे ही कहीं गड़ी हुई मिली तो हमें पता चला। Okay, so this is how you find out about history. It is very intriguing. Okay, yes, Vinayak, you had something to say. I have a question that when the Earth planet there are like water and land also. When we go in solar system and see our Earth, then there will be water. No, then why water does not fall in the solar system? Great question, Vinayak. Water क्यों नहीं fall होता? Water क्या? हम भी तो अर्थ के ऊपर ही रह रहे हैं ना, फिर हम क्यों नहीं गिरते? Right? This is also a question. हम क्यों नहीं गिरते? हम भी तो अर्थ के साथ साथ घूम रहे हैं, हम भी अर्थ के साथ साथ रिवॉल्व कर रहे हैं, पर हमें पता भी नहीं चलता कि हम रिवॉल्व कर रहे हैं या रोटेट कर रही है अर्थ, हम गिरते भी नहीं है। Yes, Didi, जल्दी and से आंसर दे रही हूँ, दैट इज ग्रेविटी। बिकॉज ऑफ ग्रेविटी अर्थ हमें अपने पास खींच के रखता है और हम गिर नहीं पाते या पानी भी नहीं गिर पाता। बट देयर इज अ बिग साइंस फैक्ट्स बिहाइंड इट जो हम फर्दर एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है? बट द आंसर टू योर क्वेश्चन इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। Okay, there is also a video that we will see which tells us कि हमें क्यों नहीं पता चलता अगर अर्थ रोटेट या रिवॉल्व करती है तो। Okay, we'll quickly explore that question also. Thank you for asking this question, Vinayak. Yes, Rohan, quickly your question. Yes, दीदी, आपने कहा दीदी आपने कहा अंडे के फॉसिल्स मिले, फिर उसमें से बच्चे क्यों निकलते डायनासोर के? देखो, हर अंडे से बच्चा नहीं निकलता ना, अंडे हैच होने चाहिए, लाइव अंडे होने चाहिए, वो फॉसिल्स होते हैं। फॉसिल्स आर डेड रिमेन्स, फॉसिल्स आर नॉट एक्चुअली लाइव एग्स जिससे कुछ निकल आए, ठीक है? हैचिंग वगैरह होनी चाहिए अंडों की, तब डायनासोर्स निकलते हैं। सो सिंस डायनासोर ही नहीं है तो कहाँ से हैच होंगे अंडे और कैसे निकलेंगे? और इतने मिलियंस ऑफ ईयर्स हो चुके हैं कि दे कुछ भी लाइव रहना इतने टाइम तक पॉसिबल नहीं है। तो हमेशा जो भी मिलता है फॉसिल इज एक्चुअली डेड रिमेन, ठीक है? दे आर नॉट लाइव। Okay, I hope that answers your question. Okay, great. There are certain movies which are very interesting and you can watch those movies. I will see if I can find links of such movies. Has anybody in the group watched Jurassic Park? किसी ने Jurassic Park देखी है movie? If you are interested in dinosaurs and want to know about it. Okay, I see Rohan and Prem have seen Jurassic Park. There are many interesting movies and documentaries. I'll find links to such movies and I'll share on the group if I can. Okay, great. Moving forward, we'll quickly watch a short video to understand why day and night occurs. ठीक है? दिन और रात कैसे होता है? What is this rotation of Earth? Earth कैसे rotate करता है? ठीक है? So focus back on the screen and understand how day and night occurs. Okay? What causes the repeating pattern of day and night? In space, the Earth moves in different ways. One way the Earth moves is by spinning on its axis. An axis is an imaginary line that runs through the Earth's center. This spinning movement on its axis is called a rotation. As it rotates, part of the Earth is facing the Sun. This part of the Earth is lit up and experiences daytime. At the same time, the opposite side of the Earth is facing away from the Sun. This part of the Earth is in darkness and it is nighttime. It takes the Earth 24 hours to complete one rotation. The repeating rotation of the Earth is why we experience the daily pattern of day and night. Here's a cool fact. The planets in the solar system rotate about their axis at different speeds. This means the length of a day on each planet is different. One day on Jupiter takes just 10 Earth hours.
1 day on Venus takes 243 Earth days. I think I'll call it a day now. See you later. Okay, great. This was a very sweet, simple video. I hope you were able to imagine कि कैसे अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करता है. जो एक्सिस है, इट इज एन इमेजिनरी लाइन जो अर्थ के बीच से निकलता है और अर्थ वहीं पे रोटेट करता रहता है पूरे टाइम. ओके, नाउ द अर्थ इज इन टिल्टेड पोजीशन. हमेशा एक ही तरफ टिल्टेड पोजीशन में अर्थ रहता है और उसी तरीके से वो रोटेट कर रहा होता है. तो जो पार्ट अर्थ का सन के सामने रहता है वहां पे दिन होता है और जो पार्ट सन के पीछे की तरफ रहता है वहां रात होती है, राइट. और फिर धीरे धीरे अर्थ रोटेट होती रहती है. पूरा एक दिन लगता है अर्थ को रोटेट होने में, 24 आवर्स. तो जहां दिन थी वहां रात हो जाती है, जहां रात था वहां दिन हो जाते हैं, राइट. नाउ इफ यू सी अर्थ को अगर आप देखोगे तो इंडिया जो एशिया वाला कॉन्टिनेंट है, एशिया और अमेरिका वाला जो कॉन्टिनेंट है वो अपोजिट डायरेक्शंस में है. इसीलिए जब इंडिया में दिन होता है उस टाइम पे अमेरिका में रात होती है. जब इंडिया में रात होती है तो अमेरिका में दिन होता है. और अलग अलग जगहों पे अर्थ पे अलग अलग टाइम होता है, राइट. यूरोप में 5 घंटे का डिफरेंस है अर्थ इंडिया और यूरोप के टाइमिंग में. ऐसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग डिफरेंस होता है टाइम का, क्योंकि वो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग पोजीशन पे होते हैं सन के रिस्पेक्ट में. ठीक है. I know a lot of you have raised hand and I'll ask you what your doubts are and we'll discuss rotation. But उसके पहले how many of you are now clear with what is rotation of the earth और दिन और रात कैसे होता है अर्थ में? Please rate yourself from 1 to 5. 1 means I am confused कि क्या होता है rotation. To 5 means I am clear कि rotation क्या है और कैसे दिन और रात होते हैं. I can see Vinayak and Satveer responding. I am hoping a response from everybody quickly. Okay. Thank you. Prem, Karthik, Anas, Harshada, Dhanshri, Manjushri. What about others? Rohan? Clear hai? Okay. Sakshi, Saleha, Yash. What about you? Sara, Harshad, Mau, Minoli, Kaveri. Okay, great. Now, if you have doubts in it or you want to ask any question, please raise your hand. Yes, Manjushri. यस दीदी, जो हमारा अर्थ है ना, जो उसके नीचे मतलब जब रोटेट करता है तो सर आधे मतलब अर्थ पर लाइट पड़ती है और आधे अर्थ पर नहीं पड़ती है. तो वैसे दीदी जो नीचे की जगह होती है ना, तो क्या उसमें भी लाइट पड़ती है क्या? Very good question, Manjushri. I will also show it to you. If I can find it in this video. हाँ ठीक है. देखो अर्थ ना इस तरीके से टिल्टेड रहता है, इसी डायरेक्शन में हमेशा टिल्टेड होता है और ऐसे ही टिल्ट रह के वो घूमता है. ठीक है. हमने ये पिछले साल की क्लास में पढ़ा था कि अर्थ पे, क्योंकि अर्थ सर्कुलर स्पेरिकल शेप का है, इसलिए हर जगह एक सी सनलाइट नहीं पड़ती. जो पोल्स की तरफ है, ऊपर की तरफ, यहाँ पे सनलाइट कम पड़ती है. ठीक है, काफी कम पड़ती है. और नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है अर्थ के, वहां पे 6 महीने तक दिन और रात रहते हैं. 6 महीने दिन, 6 महीने रात, क्योंकि वो हमेशा इसी पोजीशन पे रहता है और यही रोटेट होता रहता है और वहां कम सनलाइट पड़ती है, बहुत कम. ठीक है. तो इसीलिए अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सनलाइट रहता है पूरी अर्थ में. और पोल्स की तरफ, ऊपर की तरफ जाओगे, इसीलिए वहां बर्फ भी पूरे टाइम जमा रहता है, क्योंकि वहां कभी इतनी सनलाइट पहुंचती नहीं है. और ये क्यों होता है? क्योंकि अर्थ हमेशा टिल्टेड पोजीशन में ही है, ऐसे ही टेढ़ा रहता है ऑल टाइम, भले वो रोटेट करे या वो रिवॉल्व करे. ओके. तो इसीलिए उन एरियाज पे around for an entire half of the year there is day and for half of the year there is night. जब हम रिवॉल्यूशन वाला वीडियो देखेंगे ना, तो तुम्हें ज़्यादा अच्छे से वो समझ में आएगा कि कैसे सनलाइट उस एरिया में पड़ती है और कब नहीं पड़ती है. ओके. तो तब और क्लियर हो जाएगा. होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन, मंजुश्री. यस दीदी, आई गॉट. ओके, ग्रेट. यस प्रेम. दीदी जब अर्थ रोटेट करती है तब पीछे की साइड नाइट और आगे की साइड डे होता है ना. हाँ. लेकिन जब अर्थ जो वो घूमती रोटेट करती है ना जल्दी जल्दी, तब पीछे की साइड हो जाती है नाइट और आगे की होती है डे ना. हाँ. तो जब वो घूमता है तो जल्दी से डे और जल्दी से नाइट होना चाहिए ना.
जल्दी जल्दी नहीं घूमता, 24 घंटे लगते हैं उसको। पूरा दीदी एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए अर्थ को 24 आवर्स लगते हैं, बहुत जल्दी नहीं करता है, 24 आवर्स में वो पूरा एक सर्कल ले पाता है अपने ही एक्सेस पे। ओके और सारे प्लैनेट्स का अलग अलग टाइमिंग होता है, ठीक है। अर्थ 24 आवर्स में कर लेता है, अर्थ के टाइम के हिसाब से देखेंगे तो जुपिटर 10 घंटे में ही अपना रोटेशन कंप्लीट कर लेता है, जबकि जुपिटर इज अ वेरी बिग प्लैनेट। उसी के कंपैरिजन में वीनस जो कि छोटा प्लैनेट है उसको 240 कुछ डेज लगते हैं एक रोटेशन कंप्लीट करने में, वो इतना स्लो स्पिन करता है, ठीक है। तो सब प्लैनेट अलग अलग तरीके से स्पिन करते हैं। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू फाइंड आउट कि मार्स कितना टाइम लेता है। तो अगर तुम अर्थ से मार्स में पहुंच जाओगे तो तुम्हारा टाइम का कितना फर्क पड़ेगा, राइट, तुम्हारे एज का कितना फर्क पड़ेगा। ये जो हम जितनी भी हॉलीवुड मूवीज देखते हैं लाइक इंटरस्टेलर एंड ऑल दोस थिंग, उसमें स्पेस टाइम का बहुत कॉन्सेप्ट चलता है। अलग अलग ग्रहों पे जाओगे तो फिर अलग अलग टाइम स्पेंड होगा उन ग्रहों पे, बिकॉज उधर पे जो रोटेशन रिवॉल्यूशन और ये सारे कॉन्सेप्ट हैं वो अलग तरीके से चलते हैं, अर्थ से डिफरेंट होते हैं, ठीक है। Okay, I see a lot of hand raised and I would love to answer all the questions, and therefore what I will do is कि आगे का जो है जो रेवोल्यूशन और बाकी के क्वेश्चंस हैं वो हम कल की क्लास में कवर करते हैं, जिससे हम आज के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो क्लियर कर पाए, ठीक है, और बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन भी ना हो। ओके, आई होप दैट वुड वर्क। अभी के लिए हम सारे क्वेश्चंस आंसर करते हैं, ओके, बाकी का विल कंटिन्यू इन द क्लास टुमारो, ओके ना। Hope that works. Give me a thumbs up if it works. आगे का हम कल की क्लास में कवर करेंगे, अभी सारे क्वेश्चंस आंसर कर लेते हैं। ओके ग्रेट। हाउ डू सीजन्स ऑकर इज अ क्वेश्चन फिजा जो हम कल सबसे पहले क्लास में लेंगे। रिवॉल्यूशन की वजह से होते हैं, अर्थ के रिवॉल्यूशन की वजह से कैसे होते हैं, दिस वी विल सी इन टुमारोज क्लास, ठीक है। ओके अभी जिनको भी डाउट्स है प्लीज रेज योर हैंड, आई विल आंसर योर क्वेश्चंस वन बाय वन। यस हर्षदा। Yes, Didi, I have question that why every planet are in circles, shape of circle, why they are not यानी another shape. Very interesting question, Harshada. ये वाला इस question का answer I also don't have, but this has something related to formation of shape, has something related to gravity and some stuff. But I will find out the answer to this question and get back to you. Thank you so much for asking. Okay, I'll note down this question as well. Why do all planets have circular shape? ठीक है, thank you Harshada. कल की क्लास में आंसर, ठीक है। प्राची, you tell me. Yes, Didi, I cannot understand that in India there is मतलब यहाँ पर जब डे होता है वो वहाँ पर नाइट होता है, जब यहाँ पर नाइट होता है वहाँ पर डे होता है, ऐसे क्यों दीदी? क्यों? क्योंकि अर्थ पूरे टाइम रोटेट करता है। रोटेट करता है मतलब अपने ही एक्सिस में गोल गोल घूमता है, जहाँ पे है अपनी पोजीशन में ही गोल गोल घूमता है। लेट मी जस्ट स्विच ऑन माय वीडियो एज वेल। अगर आई डोंट हैव अ बॉल और समथिंग, बट ये पेन है सपोज, ठीक है। कैन यू सी माय पेन? Yes, दीदी। रोटेट करता है मतलब अपनी जहां पे जिस तरीके से उसी तरीके से गोल गोल घूमता रहता है अर्थ, ठीक है। सन एक ही जगह रहता है, सन नहीं घूमता, अर्थ घूमता है अपनी ही जगह पे ऐसे गोल गोल। तो जो वाला पोर्शन अर्थ सन के सामने होता है वहां पे लाइट आती है सन की, जो सामने नहीं होता पीछे की तरफ है वहां सन की लाइट नहीं जाती। तो जिस डायरेक्शन में सन की लाइट आ रही है वहां पे दिन होता है, और जहां सन की लाइट नहीं आ रही वहां रात होती है। तो जब पूरे 24 घंटे में अर्थ पूरा गोल घूमता है, तो जो भी कंट्री सन के सामने आ रही है उस टाइम पे वहां दिन रहता है, जो उसके पीछे वहां रात रहती है, राइट। तो इंडिया में अगर दिन है तो पीछे की तरफ अमेरिका है तो वहां रात होती है। फिर जब गोल गोल घूम रही है अर्थ, अमेरिका जब सन के सामने आ जाता है तो इंडिया में रात होती है। दीदी, when my Because of father rotation. हाँ। Didi, my father friend is in Rajasthan. My father call him in video call. My father call him. My father, मेरे पापा उनको पूछे वहाँ पर डे है क्या नाइट है। हमने 12 बजे कॉल किया था पर उधर भी डे था। हाँ, क्योंकि वो इंडिया में है ना, राजस्थान इज इन इंडिया, है ना। इंडिया में भी अगर आप देखोगे तो ईस्ट साइड जो है, जैसे अरुणाचल प्रदेश है या आसाम है, वहां पे दिन जल्दी होता है, वहां सुबह 5 बजे से सन आ जाता है।
और वहां पे रात भी जल्दी हो जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंडिया ही खुद में इतना बड़ा है कि अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे अलग अलग सन का अमाउंट ऑफ लाइट वहां पड़ती है। लेकिन कंपैरेटिवली देखोगे तो क्योंकि राजस्थान इंडिया में ही है इसलिए वहां पे दिन था। अब तुम अमेरिका जाओ, अमेरिका इज अ डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट कॉन्टिनेंट इटसेल्फ, वहां पे रात है, ठीक है। आज प्राची Okay. व्हाट यू विल डू इज गूगल अर्थ, गूगल अर्थ मैं बता चुकी हूँ, गूगल अर्थ सर्च करना गूगल पे जाके, उस पे वेबसाइट पे क्लिक करना, उस पे अर्थ लाइव तुम्हें दिखाई देगी, उसको गोल घुमा के देखना तो तुम्हें पता चलेगा कौन सी कंट्री किस डायरेक्शन में है। दीदी वहाँ पर नाम क्या डालना है? गूगल अर्थ, गूगल पे ऐसे डालना गूगल गूगल अर्थ, ठीक है। मैं तुम्हें दिखा भी दूंगी, ओके। फिर तुम्हें पता चलेगा कि कौन सी कंट्री किस डायरेक्शन में, कहाँ पड़ती है कौन सी कंट्री, और तो तुम्हें पता चलेगा कि अगर इंडिया में दिन है तो किस कंट्री में रात होगी, ओके, ठीक है। थैंक यू प्राची फॉर योर क्वेश्चन। And that हम्म country means planet in which the human or the living things live, means that they stay. Then why there is not any other planet where the human or living अदर राइट stay? राइट, वैलिड क्वेश्चन। यही रिसर्च चल रही है, सब लोग दूसरे प्लैनेट्स में लाइफ को ढूंढ रहे हैं, राइट। पर अभी तक एज ह्यूमंस हमें पता नहीं चल पाया है किसी और प्लैनेट में लाइफ है कि नहीं है ना। अर्थ पे क्यों लाइफ है? क्योंकि अर्थ में कुछ फैक्टर्स हैं जो बहुत ही सूटेबल हैं लाइफ पैदा होने के लिए, जिस तरीके से अर्थ पे अभी है। फर्स्ट ऑफ इट इज कि अर्थ का टेम्परेचर बहुत कंड्यूसिव है लाइफ को जन्म लेने के लिए और बढ़ते रहने के लिए। टेम्परेचर वेरी इंपॉर्टेंट। अभी देखोगे तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे बहुत गर्मी होने लगी है। पहले ना हम जब छोटे थे तो सारे सीजन्स अलग से पता चलते थे, है ना। समर बारिश चल रही होती थी तो 3-3 दिन कंटिन्यूस बारिश चल रही होती थी, स्कूल की छुट्टी हो जाती थी बिकॉज इतनी बारिश होती थी। पर अभी हम देखेंगे तो बारिश का मौसम बहुत छोटा हो गया है, गर्मी बहुत होती है, ठंड भी बहुत कम पड़ती है, राइट। तो धीरे धीरे अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है, ओके। सो अभी अर्थ में लाइफ को सस्टेन करने के लिए, क्योंकि टेम्परेचर है, ऑक्सीजन है, वाटर है, ये सारी चीजें हैं, इसीलिए अर्थ में इस तरीके से लाइफ है। हम कोई और ऐसा प्लैनेट ढूंढ नहीं पाए हैं अभी तक जहां पे ऐसा ही कंडीशंस हैं कि लाइफ एग्जिस्ट कर पाती हो। पर हो सकता है कि ऐसे प्लैनेट्स हो, हमें नहीं पता, एज ह्यूमंस हम नहीं पता कर पाए, ठीक है। हो सकता है दूसरे तरीके से लाइफ वहां रहती हो, ठीक है। हम एलियंस बोलते हैं ना, एलियंस डजंट लुक लाइक ह्यूमंस, डजंट लिव लाइक ह्यूमंस, उनकी कुछ और कैपेबिलिटीज होते होंगे, हो सकता है वो लाइफ भी हो, पर अभी भी ह्यूमंस वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, वी डोंट नो अबाउट इट, ठीक है। इट इज अ वेरी बिग रिसर्च टॉपिक। तुम लोग बड़े हो गए तो इफ यू वांट यू कैन स्टडी दिस फील्ड एंड फाइंड आउट एलियंस एंड फाइंड आउट लाइफ समवेयर एल्स, ओके। ओके विनायक, अभी तक नहीं पता है कहीं और लाइफ की वजह, हो भी सकता है कि हो, पर हमें नहीं पता, ठीक है। यस रोहन। दीदी हाँ। दीदी सर सन क्या? दीदी सन पे रात और दिन क्यों नहीं होता? क्योंकि सन तो खुद एक स्टार है रोहन, सन नहीं मूव करता, सन तो बीच में है, ओके। सन एक स्टार है, वो खुद ही की लाइट और हीट जनरेट करता है, और स्टार, और वो कहीं मूव नहीं करता, इसलिए वहां पे रात की कोई बात ही नहीं आती। सन बहुत बड़ा है और उसकी खुद की लाइट है, ओके। इट इज नॉट अ प्लैनेट, ओके, गॉट इट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ स्टार एंड अ प्लैनेट। स्टार खुद से लाइट जनरेट करता है, अपनी वहां इतनी गैसेज है कि ऑल टाइम रिएक्शंस होते रहते हैं और अपनी खुद की हीट और लाइट जनरेट करते हैं वो, ठीक है। तो हमेशा वहां पे लाइट रहेगी, गॉट इट रोहन? ओके Okay, great, good question. Next, yes Mau. Okay, before I take other questions, if rest of you दो बज चुके हैं, if you want you can leave the class, if you don't have doubt or you do not want to hear any other thing, then you can leave the class. Please join the class tomorrow, remind your friends to join the class tomorrow, check the group for homework and complete your homework, ठीक है। जिससे doubts हैं और questions हैं, please stay back, I'll answer your questions, okay। Great, yes Mau.
यस दीदी, आई एम आस्किंग दैट वो हमारे गांव में जल्दी रात होता है और हमारे इस पुणे में जल्दी रात क्यों नहीं होता है? राइट, वही जो मैं अभी तुमसे कह रही थी, अगर तुम इंडिया का मैप देखोगी तो ईस्ट इंडिया जो है, लाइक आई बिलीव यू लिव समवेयर नियर कोलकाता, कोलकाता भी ईस्ट इंडिया में आता है। सो ईस्ट इंडिया में सन जब अर्थ रोटेट कर रहा होता है तो वो सन की तरफ पहले आता है ना, एज कंपेयर टू द वेस्ट ऑफ इंडिया जहाँ पुणे है, पुणे वेस्ट इंडिया में आता है। तो ईस्ट की तरफ पहले सनराइज होता है और जल्दी सनसेट होता है, और वेस्ट की तरफ सनसेट लेट होता है क्योंकि सनराइज भी लेट होता है, क्योंकि अर्थ रोटेट उस तरीके से करता है। ठीक है, हर घंटे में 30 डिग्रीज और समथिंग रोटेशन होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सॉरी 15 डिग्री और समथिंग। तो इसीलिए, क्योंकि वो डिस्टेंस ज्यादा है ईस्ट और वेस्ट में, इसकी वजह से अलग अलग टाइम पे डे और नाइट होते हैं, सॉरी थोड़ा टाइम डिले होता है। गॉट इट माउ? यस। क्योंकि वो ईस्ट में है और सनराइजेस इन द ईस्ट ऐसा कहते हैं ना, क्योंकि ईस्ट की तरफ पहले क्योंकि अर्थ जब घूमता है तो पहले ईस्ट की तरफ जो है वो सन की तरफ आता है, इसीलिए। ओके, गॉट इट। यस कावेरी, बाय हर्षदा। यस कावेरी। कावेरी, आई कैन नॉट हियर यू। अगर तुम बोल रही हो तो तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। प्लीज टाइप योर क्वेश्चन। दीदी, हाँ बोलो, हाँ बोलो। I did not see the video. Can you send me the video? Yes, I will send the video links on group as well. दीदी, हाँ मैं ग्रुप भेजूंगी, ग्रुप पे भेजूंगी लिंक्स। ओके ओके, ठीक है। यस कार्तिक। दीदी वीडियो सेंड करो ना मुझे, मैंने वीडियो नहीं देखा। हाँ हाँ कावेरी, आई विल सेंड ऑन। Okay, can I leave the class, दीदी? ओके। यस कार्तिक, व्हाट इज योर डाउट? Yes, yes. You tell about night of for 6 months in any continent. You are हाँ। speaking about that. I was not speaking about a continent, I was talking about the poles. अर्थ में नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, ठीक है, जो इमेजिनरी yes, लाइन yes. हम बोलते हैं ना, ऊपर की तरफ इज नॉर्थ हाँ, पोल हाँ, एंड साउथ yes. पोल। तो क्योंकि Yes. अर्थ का शेप स्पेरिकल है तो सनलाइट भी पूरी जगहों पे एक सी नहीं जाती। तो नॉर्थ, हाँ, हाँ. क्योंकि अर्थ हमेशा टिल्टेड रहता है, एक ही पोजीशन में टिल्ट रहता है और उसी पोजीशन में रोटेट करता है, इसलिए ऊपर और नीचे की तरफ प्रॉपर सनलाइट नहीं जाती, इसीलिए वहां फ्रोजन है, वहां पे इतना बर्फ जमा हुआ है क्योंकि वहां कभी सनलाइट जा ही नहीं पाती है इतनी। ओके, इसलिए, और वो क्योंकि एक ही पोजीशन में हमेशा रहता है, इसलिए वहां पे दिन और रात होने में बहुत टाइम लगता है। कल जब हम रिवॉल्यूशन वाला वीडियो देखेंगे ना तो उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि किस पोर्शन में लाइट कितनी जाती है और कैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल में डे और नाइट होते हैं, तो वो कल वाले वीडियो में और क्लियरली समझ में आएगा। ओके, इट इज मोर बिकॉज ऑफ द टिल्टेड अर्थ, और एक ही पोजीशन में वो रोटेट करता है, इसीलिए ऐसा होता है। ओके, Yes, I understand. यस हर्षद, व्हाट इज योर डाउट? दीदी मेरा मामा का दोस्त है ना, अमेरिका में रहता है ना, तो है ना उधर है ना, इधर नौ उस दिन है ना, इधर 9 बजे थे रात के, तो भी उधर है ना सुबह हो गया था 9। हाँ, क्योंकि अमेरिका उल्टे डायरेक्शन में है और इंडिया के उल्टे डायरेक्शन में, तो इंडिया में अगर दिन होगी तो वहां पे रात होती है मोस्टली, ठीक है, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में है। ओके, यही हमने आज देखा। ओके दीदी, है ना। गूगल अर्थ, जैसे मैंने प्राची को बताया था, गूगल अर्थ पे कभी जाके देखना अर्थ की पोजीशन पे कौन से प्लैनेट कहाँ पे हैं, तो तुमको पता चलेगा। ओके, इफ यू वांट आई कैन शेयर राइट नाउ आल्सो। दिख रहा है? ओके दीदी, ये दिख रहा है? यस यस ये अर्थ, यस अब इस यस ये ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया का है, ये अमेरिका, यस ये अफ्रीका है। ओके, इंडिया यहाँ पे कहीं है, ओके, बादलों से घिरा हुआ, दिस इज इंडिया, ये यस इंडिया है। अगर ये वाला पोर्शन अर्थ के सामने है तो इंडिया, अफ्रीका का थोड़ा सा पार्ट, वेस्ट एशिया, इन सब जगहों पे दिन होगा। फिर इंडिया के यस अपोजिट पीछे की तरफ हियर अमेरिका, यस ये है अमेरिका। अगर वो यहाँ कहीं रहते हैं तो जब इंडिया में रात होगा तो यहाँ दिन होगा। गॉट इट? यस ऐसा होता है दीदी, बट हाउ दैट लाइक दिस? ऐसा क्यों है, इज यूर आस्किंग?
क्यों? Yes. क्योंकि अर्थ रोटेट करता है ना, रोटेट कर रहा होता है ऑल टाइम अपने ही एक्सिस Yes. एक पूरा रोटेशन 24 घंटे में कंप्लीट करता है अर्थ पूरे टाइम। मतलब दीदी ये ऑपोजिट है। हाँ, क्योंकि अर्थ गोल है ना, तो अपोजिट डायरेक्शंस में होंगे सारे कॉन्टिनेंट्स। यस एक बॉल लेना, बॉल में बना के देखना, एक तरफ कुछ है तो बाकी सारे कॉन्टिनेंट्स दूसरी तरफ होंगे, राइट? यस। ठीक है, ग्रेट, ओके।